یہ وہ دور تھا جب انسان خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ روم اور فارس زمین کے دو خدا بن چکے تھے۔ دنیا کی ساری دولت، ساری ٹیکنالوجی اور ساری طاقت صرف ان دو سلطنتوں کے پاس تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سورج صرف ان کے لیے نکلتا ہے۔ مگر جب اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ چنی تو ان دونوں سپر پاورز کو رد کر دیا۔ انتخاب ہوا تو ریت کے ایک ایسے سمندر کا جسے دنیا عرب کہتی تھی۔ نہ پانی، نہ سایہ، نہ فوج، نہ قانون۔ بظاہر یہ ایک موت کا کنواں تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل میں ڈال دیا تھا، یا پھر اس ویرانے کے پیچھے کوئی ایسا جغرافیائی راز چھپا تھا جو روم اور فارس کی تلواریں بھی نہیں کاٹ سکتی تھیں؟ آئیے اللہ کی اس عظیم حکمت کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا۔ اگر آپ اس وقت ایک سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کو دیکھتے ہیں تو بظاہر روم اور فارس تہذیب کا مرکز لگتے تھے، بڑے بڑے محل، فلسفہ اور سائنس، مگر یہ صرف باہر کی چمک تھی۔ اندر سے یہ معاشرے گل سڑ چکے تھے۔ مغرب میں رومن ایمپائر تھی، ان کا مذہب عیسائیت تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات گم ہو چکی تھیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب مذہبی فرقہ واریت عروج پر تھی۔ بادشاہوں نے مذہب کو اپنی سیاست بنا لیا تھا۔ عوام پر ٹیکس کا اتنا بوجھ تھا کہ مصر اور شام کے لوگ اپنے ہی عیسائی بادشاہوں سے نفرت کرتے تھے۔ وہ کسی بھی ایسے نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں اس ظلم سے بچائے۔ اگر تم نے یہ بھی لے لیا تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ تم مرنے دو، قیصر کو اپنے سونے سے مطلب ہے، تمہاری زندگی سے نہیں۔ دوسری طرف مشرق میں عظیم فارس تھی، یہاں حالات اس سے بھی بدتر تھے۔ یہاں انسانوں کو ذات پات میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اگر ایک شخص کسان کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ ساری زندگی کسان ہی رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور بادشاہوں کو خدا کا سایہ مانتے تھے۔ عدل اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ ایک عام آدمی کی حیثیت ایک جانور سے زیادہ نہیں تھی۔ روم کیا چیز ہے؟ ہم اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قسطنطنیہ کو روند ڈالیں گے، مگر عالی جاہ خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ خاموش، بادشاہ کا حکم خدا کا حکم ہے۔ لیکن اللہ کی منصوبہ بندی دیکھیں، ٹھیک اسی وقت جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو رہا تھا، یہ دونوں سپر پاورز ایک دوسرے کو ختم کرنے پر لگ گئیں۔ 602 عیسوی سے 628 عیسوی تک ان دونوں کے درمیان تاریخ کی سب سے خوفناک جنگ لڑی گئی۔ کبھی فارس روم کو فتح کرتا، کبھی روم فارس کو۔ 26 سال کی مسلسل جنگ نے ان دونوں کو کھوکھلا کر دیا۔ ان کے خزانے خالی ہو گئے اور فوجیں تھک گئیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا راستہ صاف کرنے کا طریقہ تھا۔ دونوں بڑے شیر لڑ لڑ کر زخمی ہو چکے تھے، تاکہ جب اسلام کا شیر اٹھے تو کوئی اسے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ سیاسی میدان تیار ہو چکا تھا، مگر ابھی ایک سوال باقی تھا کہ ان خونی بھیڑیوں کے درمیان اسلام اپنے ابتدائی دنوں میں محفوظ کیسے رہا؟ اس کا جواب عرب کے نقشے میں چھپا ہے۔ عرب کو عربی زبان میں جزیرت العرب کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ جزیرہ نہیں ہے، یہ تو 3 طرف سے زمین سے جڑا ہوا ہے، مگر جغرافیائی اعتبار سے یہ واقعی ایک الگ دنیا تھی۔ اللہ نے اس کے دفاع کا انتظام پانی اور ریت سے کیا۔ مغرب میں بحیرہ احمر، ریڈ سی، مشرق میں خلیج فارس اور جنوب میں بحیرہ عرب۔ مگر خطرہ شمال سے تھا، جہاں روم اور فارس کی سرحدیں عرب سے ملتی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ان بڑی طاقتوں نے کبھی عرب پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ تھی
नफा और नुकसान। रोम और फारिस सिर्फ उन इलाकों को फतह करते थे जो सब्ज होते थे, जहां से वो टैक्स ले सकें। अरब के पास रेत के सिवा कुछ नहीं था। एक रूमी जनरल के लिए अरब पर हमला करना ऐसा ही था जैसे सोने की कान छोड़कर सांपों के बिल में हाथ डालना। और जब एक बार रूमियों ने यह गलती की तो कुदरत ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा कभी नहीं आए। 25 कबल मसीह में रूमी जनरल एलियस गैलिस 10,000 फौजियों का लश्कर लेकर अरब में दाखिल हुआ। इसका मकसद यमन के खजानों पर कब्जा करना था, मगर इसे अरब के बदुओं से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। अरब के सूरज और प्यास ने दुनिया की बेहतरीन फौज को घुटनों पर ला खड़ा किया। जनरल, पानी खत्म हो चुका है, आधी फौज गिर चुकी है। ये कोई जंग नहीं, ये खुदकशी है। बस ये जमीन मलौन है, यहाँ इंसान नहीं, यहाँ मौत बसती है। वापस चलो। इस मुहिम में रूमियों की आधी फौज बीमारी और भूख से हलाक हो गई। अरब की जमीन ने खुद अपनी हिफाजत की। सदियां गुजर गए, 570 ईस्वी आया और वो वक्त आया जब इंसानों यानी रूमियों की हिम्मत टूट गई। तो अब्राहा हाथियों का लश्कर लेकर आया। मकसद वही था, अल्लाह के घर काबा को गिराना। अहले मक्का के पास कोई फौज नहीं थी जो इस सुपर पावर का मुकाबला कर सकती। उन्होंने शहर खाली कर दिया। बज़ाहिर दिफा का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ अल्लाह ने अपनी इस हिकमत का आखिरी सबूत दिया। जब जगराफिया भी नाकाम हो जाए तो अल्लाह अपनी मखलूक अबाबील को भेजता है। अब्राहा का लश्कर भूसे की तरह बिखर गया और ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 दिन पहले पेश आया। ये अल्लाह का पैगाम था कि इस सरजमीन पर कोई गैर मुल्की ताकत कब्जा नहीं कर सकती। ये एक कुदरती इंक्यूबेटर था जहां इस्लाम को महफूज तरीके से पैदा होना था और परवान चढ़ना था। रोम और फारिस के मुकाबले में अरब का सियासी निज़ाम बज़ाहिर सिफर था। कोई बादशाह नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई जेल नहीं थी। बेज़ाहिर ये एक कमजोरी लगती है ना, मगर अल्लाह की हिकमत देखें, ये इंतशार दरअसल इस्लाम की सबसे बड़ी ढाल बन गया। स्ट्रेटजी का उसूल है, अगर आप किसी कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं तो उसके बादशाह को खरीद लो या कत्ल कर दो। रोम और फारिस यही करते थे। वो पड़ोसी मुल्कों के बादशाहों को अपनी जेब में रखते थे। मगर अरब में वो किसे खरीदते? वहां हर कबीला अपनी जगह एक छोटी सल्तनत था। सिरे से कोई हेड था ही नहीं जिसे काटा जा सके। सोचिए, अगर मक्का में कोई एक बादशाह होता और वो इस्लाम के खिलाफ हो जाता तो वो एक हुक्म पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार कर सकता था। मगर चूंकि कबायली निजाम था तो बनु हाशिम की हिमायत ने ढाल का काम किया। बादशाहत की गैर मौजूदगी ने दावत इस्लाम को इब्तदाई सालों में रूंधे जाने से बचा लिया। फिर बात आती है नफ्सियात की। एक रूमी या ईरानी शहरी पैदाइशी तौर पर ज़हनी गुलाम था। वो बादशाह के सामने सजदा करने का आदी था। मगर एक अरब बदू, वो हर कुर्बानी के लिए तैयार था मगर गुलामी कबूल नहीं करता था। हमारे बादशाह के पास 1 लाख फौज है। अगर तुमने सर न झुकाया, अपने बादशाह से कह दो यहाँ सिर्फ रेत के तूफान हुक्म चलाते हैं, इंसान नहीं है। इसलिए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये पैगाम एक आजाद रूह के दिल में फौरन उतर गया। एक ज़हनी गुलाम के लिए तौहीद का बोझ उठाना मुश्किल था। अल्लाह को ऐसे लोग चाहिए थे जो दुनिया के कैसर व खसरू से न डरते हों। अब आते हैं मईशत की तरफ। अल्लाह ने मक्का को एक मरकजी मकाम पर क्यों रखा? रोम और फारिस की जंगों की वजह से फायदा ये हुआ, तिजारती रास्ते बंद हो गए। ताजरों के लिए वहां से गुजरना मौत था। नतीजा क्या निकला? दुनिया की सारी तिजारत ने अपना रास्ता बदल लिया। अब चाइना और हिंद का माल यमन से होता हुआ मक्का के रास्ते यूरोप जाने लगा। मक्का, जो एक वीरान वादी थी, अचानक दुनिया का ट्रांजिट हब बन गया। ये उस दौर का इंटरनेट था जहां मशरिक और मगरिब मिलते थे। ये अल्लाह की प्लानिंग थी इस्लाम के आने से पहले ही। अल्लाह ने इस्लाम फैलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया था। कुरैश के ताजिर सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम जाते थे। जब ये ताजिर मुसलमान हुए तो उन्हें नई सड़कें नहीं बनानी पड़ी। वो उन्हीं पुराने रास्तों पर चलकर दीन को चाइना से लेकर अफ्रीका तक ले गए। तुमने सुना अब्दुल मुत्तलब के घर में जो यतीम मोहम्मद है वो अजीब बातें करता है। क्या बातें? कि खुदा सिर्फ एक है और ये सब बुत सिर्फ पत्थर हैं।
अजीब बात है, मगर इसके चेहरे पर सच्चाई है जो मैंने आज तक नहीं देखी है। और फिर हज का निज़ाम इस्लाम से पहले भी तमाम अरब कबाइल साल में एक बार मक्का जमा होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इज्तिमा का फायदा उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग खुद चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जगराफिया महफूज था, सियासत आजाद थी, रास्ते खुले थे, हर चीज तैयार थी। मगर सवाल यह है कि ये सब इंतजाम किसने किया? ये वैरान वादी ही क्यों? उसका जवाब 2500 साल पुरानी एक दुआ में मिलता है। अब तक हमने तारीख, जगराफिया और सियासत की बात की, लेकिन हकीकत यह है कि अरब का इंतखाब किसी बादशाह या जनरल ने नहीं किया था। इसका फैसला 2500 साल पहले इसी वैरान रेत पर खड़े एक बूढ़े बाप ने किया था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा और बीवी यहाँ छोड़ा तो बीबी हाजरा ने उनसे पूछा, ए इब्राहीम, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? हाँ। तो फिर वो हमें जाया नहीं करेगा। इस अजीम यकीन के बाद उन्होंने अल्लाह से ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह उन्हें रोम जैसे बागात दे। उन्होंने एक अजीब दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी वादी में बसाया है जहां कोई खेती नहीं उगती। गौर करें, उन्होंने गैर ज़रही का इंतखाब खुद किया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर यहाँ खेती बाड़ी होगी तो रोम और फारिस के बादशाह यहाँ आ जाएंगे। अगर यहाँ सोना होगा तो लुटेरे आ जाएंगे। उन्हें अपनी नस्ल के लिए दौलत नहीं, हिफाजत चाहिए थी ताकि वो काबा की पासबानी कर सकें। और फिर इस दुआ के कबूल होने का इंतजार किया गया। सदियां गुजर गए, रोम आया, फारस आया, सिकंदर आजम आया, मगर किसी ने भी इस बंजर वादी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अल्लाह ने इस जमीन को अपनी खास अमानत के तौर पर छुपा कर रखा, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो क्या ये महज इत्तफाक था? जगराफिया ने उन्हें दुश्मनों से बचाया, सियासत ने उन्हें ज़हनी गुलामी से बचाया। तिजारत ने उन्हें पूरी दुनिया से जोड़ दिया। और हजरत इब्राहीम की दुआ ने इस बंजर जमीन को दुनिया का सबसे कीमती मकाम बना दिया। आज की दुनिया में अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आपके पास वसाइल की कमी है तो अरब के सहरा को याद कर लेना। कभी कभी अल्लाह हमें बंजर वादी में इसलिए रखता है ताकि वो हमें बड़ी सल्तनतों के शर से बचा सके। जो हमारी नजर में महरूमी है वो अल्लाह की नजर में हिकमत है। अगर आपको अल्लाह की इस अजीम हिकमत पर यकीन है तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।